Gautam sir spoke about, which is it talks about the human spirit. See, success is what? What is success? I mean, if you win a medal, is that success? If you come first in school, is that success? But what about everybody else who worked equally hard? You know, why is that effort not celebrated? And I think that's something that doesn't happen in life, but in cinema that can happen. You can celebrate the emotion and the effort and the work that each one of us put in all those moments where we didn't get celebrated. Maybe it didn't go that well. Maybe maybe we couldn't hold on to something and say, "Dekh, मैंने ये कमाया." But we are experiencing life. हम तो जिंदगी कमा रहे हैं ना. So ये फिल्म उस चीज़ के बारे में कि आपने जिंदगी में क्या कमाया और आप जिंदगी कैसे जीना चाहते हो और आपकी वजह क्या होनी चाहिए. So it's a very emotional film and it's a very inspiring film. Some films make you cry because you feel sad. This film made me cry in a very, I don't know, I felt uplifted. I was crying in an overwhelmed manner, and that is why I wanted to bring this film to the audience, because I think everybody needs a little bit of faith, everybody needs a little bit of positivity, everybody needs to believe in themselves. And you must believe in yourself. Let the world say what they want to say. You must believe in yourself because only you live your life, And this film is about that, So late bloomer and all, yes, but I think it's a little above that, That's just a setup for the character. But what we're trying to say in the film, I think, is very universal. Hi, Shahid. If I can add to that, we often forget that why we started. So every time you have to remind yourself, this is exactly why I started. So just remember why you began. Hi, Shahid. One sec. Towards your right. One sec. Yeah. Who? I'm deciding. One sec. There's a question coming in for you. Hi, Shahid. ये सामने आपके सोहेल ये आपके सामने. I'm getting over his statement. Kabir Singh is in the room. I've decided. Yeah. The trailer is fantastic. Congratulations to आप सभी लोगों को. बात करते हैं जर्सी की और उस फिल्म में बताया कि बच्चा जर्सी के लिए ना you want to buy a jersey for your son. कभी ऐसा कोई मौका as a young boy or as a teen जहाँ आपको कुछ क्रिकेट से रिलेटेड बैट बॉल या आपका क्रिकेट किट या जर्सी you were very happy. और उस वक्त ऐसा होता था कि आपके पास बैट और बॉल या किट हो तो फर्स्ट बैटिंग मेरी डबल बैटिंग में. हाँ, ये हमेशा होता था. जिसका भी बैट है उसी को बैटिंग मिलती थी. फर्स्ट बैटिंग उसी को मिलती थी. हाँ, that's true. हमेशा से. तो आपका अगर मैंने कल भी पूछा था अपनी क्रिकेट किट कभी बाई किया हो या अगर उस तरह से कोई मेमोरीज हो. पैसे नहीं थे. क्रिकेट किट के पैसे नहीं थे. बैट तक ले लेता था मैं और बॉल हम लोग सब कंट्रीब्यूट करके लेते थे कि everybody used to pull in and then because बॉल तो घूम जाती है ना, कभी फट जाती है कभी घूम जाती है. So yeah, bat I had a bat, yes, but full kit and all was a little उतना बजट नहीं था. अच्छा, और वो यजदी चलाना कैसा रहा एक्चुअली वो जो बाइक आप चला रहे हो. हाँ, मेरे साथ पिछली 2 फिल्मों में ऐसा हुआ है कि मैं इतनी पुरानी बाइक चला रहा हूँ and I love riding, I love riding bikes, so I'm like, all right, put me on a bike and I'm going to see you guys when the shot is ready, let me know. I'm like, get. So yeah, these bikes look very nice, but they're in really bad condition because they're very old. But I remember that my mamu used to own a Yezdi. In fact, that was one of the discussions that we had, and it was a memory that I shared with Gautam sir, and I was like, that should we use a bike like that, because it's a very strong memory that I had. And of course, we need to find a vehicle that's right for the period, because one part of the film is in the 90s and one part of the film is in the 80s, right? So the older part is in the 90s, and it's one of the most iconic motorcycles of the 90s. And I remember sitting with my mamu and riding on it a lot. It used to be a very fascinating big motorcycle when I was a kid. So इसके गियर मैं मंगा देता हूँ आपके लिए. इधर से आप उसी पे निकलो. चलाते हो आप बाइक? हाँ, क्या था इसका 1 down 3 up ऐसे 1 up 3 down ऐसे कुछ होता है. बस कभी आपका किकबैक मिला है आपको बाइक पे? कभी किया है? Solid. अभी तो ऐसा स्विच पे हो गया सब. Alright, here's the order. 1 and then 2 and then this gentleman in the third. So you can start with the question. Hi, Shahid. Up there. Right at the top, behind the legs. Shahid. Hi, Shahid. Yes.
हाल ही में स्पोर्ट्स ड्रामा अरे कैसे आप? बहुत टाइम बाद। या आप कैसे? मैं ठीक हूँ सर. शाहिद Sorry, I'm getting excited. I've not seen you guys for very long. Apologies. That's your cue to say likewise, but it's okay. We'll move on quickly. All right. शाहिद अभी कुछ सालों में बॉलीवुड में हिंदी सिनेमा की बात करें तो बहुत सारी स्पोर्ट्स फिल्में बन रही हैं, क्रिकेट पे भी काफ़ी बनी हैं. आप इसमें क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं. अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पर्दे पर और कौन से स्पोर्ट्स ड्रामा में आप इन्वॉल्व होना चाहेंगे? कोई ऐसा रियल लाइफ किरदार या स्पोर्ट्स पर्सन जिसे आप पर्दे पर पेश करना चाहेंगे, कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? यार आई एक्चुअली रियलाइज कि जब भी आप कोई भी फिल्म करो जिसमें एक स्पोर्ट हो या कोई भी एक स्किल हो जो आप विच यू नॉट स्किल्ड इनफ इन, उसको करना बहुत मुश्किल होता है. तो आई वुड बी वेरी स्केप्टिकल अबाउट अप्रोचिंग a subject which requires that amount of skill unless I can dedicate that amount of time to it. When I did this film, I realized that even though it's something I've played always and I was a cricketer, to try and do it at the level at which it needs to be done for the film to look authentic and for it to look right for this character. शायद हिंदी में थोड़ा पहले बता देते भाई, मेरा फ्लो टूट गया. I agree, आप सही कह रहे हैं. मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होता है जब आप एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करते हो जिसके अंदर कोई एक स्पोर्ट होती है या कोई भी एक स्पेशलाइजेशन होता है जो आपको सीखना पड़ता है. अगर आप उसको ऑथेंटिकली नहीं कर पाते तो कहानी आप कितनी भी अच्छी कहो, इमोशंस आप कितने भी अच्छे से पोर्ट्रे करो, उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है. तो मैं बहुत सोच समझ के करूँगा. अगर मैं फिर से कोई भी स्पोर्ट्स के ऊपर फिल्म करूँगा तो मुझे उसके लिए काफ़ी वक्त निकालना पड़ेगा और वो देना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट मैं काफ़ी फेमिलियर हूँ क्रिकेट से एज कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स. फिर भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था. सो आई वुड रियली थिंक मैनी टाइम्स बिफोर टेकिंग इट अप. शायद एक छोटा सा सवाल और है. शायद आपने बताया कि 4 महीने आपने प्रेप किया था, 4 महीने ट्रेनिंग ली थी. कितना मुश्किल था फिर से बैट बॉल उठाना? और इसी से जुड़ा एक छोटा सा और सवाल है कि इसका आंसर दीजिए, मैं फिर पूछता हूँ. आप जवाब दो उनको, है ना? कितने सवाल पूछ रहा है. शी इज सिटिंग आउट देयर एंड सीइंग. क्रिकेट खेलना बड़ा मुश्किल है, उसकी टेक्निकलिटी होती है. और जब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर लगना चाहते हैं तो आपको वी हैव अ ट्रेनर हु वी हैड हायर्ड फिल्म के लिए. उनका नाम है राजीव, और उसके साथ एक पूरी टीम थी उनकी. उनके असिस्टेंट थे हर्षुल और फिजियोथेरेपिस्ट थे और सब थे. सो इट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच. आपको उसको बहुत अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ता है. आप कैजुअली अप्रोच नहीं कर सकते, बहुत टेक्निकली करना पड़ता है. एक इंजरी भी आपको हुई थी, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? So you have, go ahead. तुम लोग डिसाइड कर लो यार. No, so I believe Allu Arvind sir has to leave at 6:15. So we'll take. Wait, there's a senior journalist who's waiting for a question to be asked, sir. Please go ahead with your question. Shahid, hi, Ramchandran. Yeah, Shahid. So you obviously honed your cricket skills during the film. How much of a craft have you honed after a film like this? It seems to be a very, very intense performance from what the trailer looks like. I've seen the Telugu version as well. How much have you honed your craft after this? See, the best way to हिंदी में बोलूँ इंग्लिश में, आप क्या प्रेफर करेंगे? फ्रेंच मुझे आती नहीं है. इंग्लिश इज ओके फॉर यू? जिस भाषा में आप बोलना चाहते हैं. सो देखिए, अगर आप अपनी स्किल्स को होन करना चाहते हो तो मैं तो पंजाब में 2 साल रहा सी. तो एनीवेज, सो आपको अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहिए. आप अपने स्किल्स होन नहीं कर सकते, आपको जाके काम करना है. आप खुद ही गाड़ी चला रहे हो, नेविगेशन भी खुद कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है. जब आप कार रेसिंग देखते हो, एक नेविगेशन वाला होता है और एक गाड़ी चला रहा होता है. तो यू नीड समबडी हु विल गाइड यू नीड समबडी जो आपको बाहर का पर्सपेक्टिव दे, जो आपको कुछ नया बताए, आपके अंदर, आपके सिस्टम के अंदर कुछ नया फ्यूल डाले, जिसकी वजह से आप उसको कुछ अलग तरीके से अप्रोच करो. कहानी के अंदर पोटेंशियल होना चाहिए सबसे पहले. ना कोई डायरेक्टर कुछ कर सकता है, ना कोई एक्टर कुछ कर सकता है. अगर कहानी के अंदर दम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. वो गाड़ी क्रैश होने वाली है, आप सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर सकते हो.
कहानी के अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, कैरेक्टर के अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, और जिनके साथ आप काम कर रहे हो, जो आपके को एक्टर्स हैं, जो आपके डायरेक्टर हैं, दे शुड ऐड टू योर जर्नी, यू नो. सो कोशिश यही है कि मैं उस तरह की फिल्में चुनूँ. Okay, wait. Sir. Okay, go ahead. पूछिए. So these days we see a lot of remakes of Telugu cinema and Tamil cinema and Malayalam cinema being made in Hindi, but we don't see the reverse happening in Telugu cinema, Tamil cinema, or Malayalam cinema. Do you think Telugu cinema is far more inclined towards making films on original subjects? And my add-on question is, if you had to remake a Hindi film, which would that be in Telugu? Gajani 2. But the first one, why don't we see a lot of Hindi films not being remade in Telugu? Actually, it doesn't come out like that. There are many Hindi films being made in Telugu and Tamil also. But it's not publicized well here, it's publicized there. And the recent Pink is the one which is a blockbuster there, produced by Mr. Dilraj. So there are many films like that, but it doesn't come into the press here. That's the reason, because of the localization. Thank you. Right, there's a lady. Yes, ma'am. Last. I had quite a few flops in the first 15 years of my career, you know. So you have to develop a hard skin, and no. So Arjun is, but it's interesting to hear that you think that Arjun is a motivated character, because that's a very subliminal layer in the character. It's not really at the forefront. At the forefront, the character is very laid back, and for most people, when they see the film, and that was our conversation also, it would seem that he doesn't seem to be very motivated, for sure, in a large part of the film. But there is an internal angst, an internal belief, an internal need to prove that is there in him throughout. And to me, that is the most important layer of that character, because I don't want to see a story about a guy who doesn't want to do anything. I want to see a story about a guy who really wants to do something but for some reason isn't doing anything. That story interests me, and that's the way I saw this character. Yeah. Ma'am, sorry. There's one last question because we are pressed for time. This coming from this gentleman here. ओके शायद मेरा सवाल आपसे है अगर इस ट्रेलर की अगर मैं बात करूं यू आर अमेजिंग मृणाल बहुत अच्छी लगी Why don't you get a mic, man? Why don't you give me a या mic? प्लीज यार ओके थैंक यू सो मच यार थैंक यू ओके शायद एंड मृणाल एंड टीम सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम फैजान है Hi, Faizan. How are you? Nice to मौका meet मिला you, है। Faizan. But, Lovely, yeah. कोई नहीं ओके शाहिद एंड मृणाल सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन ट्रेलर के लिए एंड टीम बहुत अच्छा ट्रेलर है मेहनत निकल आ रही है आप लोगों के सामने नजर आ रही है इसमें अगर इस किरदार की मैं बात करूं आपसे तो कितनी इमोशनल जर्नी थी आपकी इस फिल्म के अंदर आप दोनों से मेरा सवाल है थैंक यू. विद्या की जो जर्नी है बहुत टफ चॉइसेस लिए हैं उसने फिल्म में, और मेरे लिए भी विद्या प्ले करना कुछ मतलब आसान नहीं था. इनफैक्ट बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन तीसरे चौथे दिन अमन को मैं कह रही थी कि अमन मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट है. लेकिन उन्होंने मोटिवेट किया. ही मेड श्योर. एक ऐसा दिन था जहाँ पे इनफैक्ट ये सीन जहाँ पे मुझे उनको थप्पड़ भी मारना था, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं उस सीन, क्योंकि शूटिंग के चौथे या पांचवें दिन वो सीन शूट हो रहा था, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं शायद उस सीन के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ. और बहुत ही कम, इनफैक्ट नहीं, मैंने कभी देखे नहीं ऐसे प्रोड्यूसर्स जिन्होंने वो शूटिंग कैंसिल करके मुझे 2-3 दिन एक्स्ट्रा दिए, और उसके बाद वो चाहते थे कि मैं कैरेक्टर का जो जर्नी है वो महसूस करूँ, और देन आई शुड डिलीवर द परफॉर्मेंस. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. डिड यू? तो या बहुत डिफरेंट रोल है विद्या का. आपने मुझे कभी ऐसे रोल को प्ले करते हुए नहीं देखा होगा. हमेशा हंसती रहती है, खेलती रहती है, स्वीट सी लड़की होती है, हमेशा सपोर्ट करती है. बट काफ़ी सब कंप्लेंट्स आ रही थी मुझे लास्ट टाइम कि
आप हमेशा सपोर्टिंग रोल में ही क्यों आते हो, आप हमेशा सपोर्ट क्यों करते हो अभी लोग? शायद आपसे जानना चाहूँगा, क्या अप्रोच होती है कोई भी कैरेक्टर को पकड़ने के लिए? सॉरी, क्या होती है? क्या अप्रोच होती है आपकी कोई भी कैरेक्टर को पकड़ने के लिए? काफ़ी अलग अलग तरीके के किरदार आपने निभाए हुए इससे पहले, चाहे वो कबीर सिंह हो, चाहे वो जब भी बैट में हो, या उड़ता पंजाब में हो, इस बार आप अर्जुन का कैरेक्टर निभा रहे हैं। तो कोई भी कैरेक्टर पकड़ने से पहले क्या अप्रोच होती है, क्या प्रोफेशन और क्या तैयारी, फॉर्मेट क्या होता है आपका किरदार? जो भी कैरेक्टर्स का नाम आपने लिया है, मैं अब तक उनको पूरी तरह पकड़ नहीं पाया हूँ। कोशिश यही होती है कि आप कुछ हद तक उनको समझ पाओ या उनको पकड़ पाओ। बट थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल थिंकिंग दैट माय वर्क इज वर्थवाइल। You should always approach every film like it's your first. You should never get into a film thinking मैंने पहले ये किया है, मैं आज इतने साल काम कर चुका हूँ, मेरी इतनी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, लोगों को मुझसे ये देखना है, मैं सेट पे जाके ना ऐसे कर दूंगा तो डायरेक्टर ताली बजा देगा। ये सब बकवास है। आप वही एक्टर हो, एक फिल्म में आप बहुत बेहतरीन काम कर सकते हो, अगली फिल्म में आप बहुत बेकार काम कर सकते हो। मैं खुद एक ऑडियंस हूँ और मैं कभी कभी बहुत ही अच्छे एक्टर्स को देखते देखते सोचता हूँ, व्हाट वाज दिस पर्सन थिंकिंग व्हेन ही वाज डूइंग दिस रोल, यू नो। यू हैव टू स्टे अवेक एंड यू हैव टू स्टे रेलेवेंट। दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स। कई बार मैं अपने से बहुत ज़्यादा यंगर जूनियर लोगों का काम देखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स द ओनली वे टू अप्रोच इट। एवरी फिल्म इज़ अ न्यू जर्नी, every time it's going to be something new. जो हो गया वो हो गया, nobody cares about that. उसका पैसा उन्होंने दे दिया, audience वापस आ रही है, you have to give them something substantial, and that's what I hope I can do with Jersey. Alright, I hope our cast and crew has answered all the possible questions that there were to be asked, and अब हमारे ये सारे जो photographer friends हैं, हाँ आवाज निकली, so we'll take the microphones.